Correct answer is answer B. Which of the following option is a collective noun? Collective noun कौन से होते हैं जो कि किसी ग्रुप या क्लास को रेफर करते हैं? So let's see. Dog. Dog is a common noun. This is not referring to a group. Team. Yes. Team की जब हम बात करते हैं तो we are talking about a group of people. So team is the correct answer. Book. This is not a collective noun, and city is also a common noun. So correct answer is answer B. Next is again, the correct answer is answer B. Question is, the banker reviewed the loan application carefully. In this sentence, you need to find out the noun. In this sentence, there are two nouns, the banker and the loan. But banker is not in the option. So we will look after the next noun, and that is the loan. The loan is noun को identify करने का एक और method है, that is this article. Articles जो है वो हमेशा ही noun से पहले आते हैं. So अगर कहीं पे article लगा हो तो highly possibility है कि next जो word है वो noun ही होगा. So reviewed is a verb, loan is the correct answer because this is a noun, careful is an adverb, and the is an article. करेक्ट आंसर इज आंसर ए. उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पूछा था. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर दोस नाउन्स विच यू कांट सी, यू कांट टच, यू कांट फील. सो नॉलेज क्या है? एक ऐसा नाउन है विच यू कांट सी और टच और फील. सो दिस इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. जबकि ब्रांच, कंप्यूटर एंड क्लर्क ये जो हैं ये हमारी किसी न किसी 5 सेंसेस के साथ रिलेट करते हैं. सो करेक्ट आंसर इज आंसर ए. Correct answer is answer B. The bank has several dash in the cities. Correct answer is branches. Several लग गया इसलिए obviously हमें plural word ही यहाँ पे डालना है. Branch is not the correct option. और branches इसकी spelling ही wrong है. Branching जो है वो भी गलत है हमारा option. So correct answer is answer B. Now fill in the blanks with a suitable collective noun. The correct answer is C. Dash of directors. This is a collective noun. Board of directors. क्रू जो है वो डायरेक्टर्स के लिए यूज नहीं होता, ना ही टीम होती है, ना ही फ्लॉक. दीज वर्ड्स आर मेड फॉर द स्पेसिफिक वर्ड्स के जो मेंबर्स होते हैं उनको क्रू बोला जाता है. टीम जो है हमारा जो प्रोजेक्ट वगैरह फॉलो करती है दैट इज अ टीम. ऐसे ही फ्लॉक ऑफ बर्ड्स. सो ये जो वर्ड्स हैं ये स्पेसिफिक वर्ड्स के आगे ही लगते हैं और डायरेक्टर्स के साथ हमारा क्या जाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. सो सी इज द करेक्ट आंसर. Next is find out the proper noun. Correct answer is B. RBI regulates all the banking activities in India. Now RBI, this is the proper noun. Proper noun जो है वो always capital letter के साथ start होता है and these are referred to a specific body. Other options are incorrect. Correct answer is again answer B. Choose the plural form of the noun account. Account का plural होता है accounts, इसके साथ s लगता है, so this is the correct option. He applied for a dash at the bank. Correct option is D. He applied for a position at a bank. कई स्टूडेंट्स इसमें जॉब फिल कर देते हैं which is the incorrect option. So correct is he applied for a position at a bank. Correct answer is answer B. Which of the following sentence uses a noun as a subject? So she is a pronoun, the bank is a noun, they is a pronoun, and he is also a pronoun. So correct answer is answer B.
Correct answer is answer C. The manager approved the loan quickly. Quickly जो word है ये हमारे verb अप्रूव्ड को डिफाइन कर रहा है कि मैनेजर ने जो लोन है वो कैसे अप्रूव किया, बहुत ही जल्दी, क्विकली अप्रूव किया. तो जो वर्ड्स जो है हमारे वर्ब को डिफाइन करते हैं उनको हम बोलते हैं एडवर्ब. सो दैट्स व्हाई एडवर्ब सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउन्स कौन से वर्ड्स होते हैं? दोस आर द नेमिंग वर्ड्स, जो कि किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग का नेम होता है. वर्ब आर द एक्शन और हेल्पिंग वर्ब्स. एंड एडजेक्टिव वो वाले वर्ड्स होते हैं जो कि ईदर नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करते हैं. बट क्विकली हमारा एडवर्ब है बिकॉज दिस इज गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब. सो करेक्ट आंसर इज आंसर सी. Correct answer is answer A. The banker advised her to open a savings account. Banker जो है ये हमारा noun है, that's why this is the correct answer. Noun के बाद हमारा verb advised लगा हुआ है. वैसे भी जो noun है उनके आगे articles लगते हैं, so जब भी article आ जाए तो definitely next word क्या होगा? Noun. He completed the transaction carefully. उसने ट्रांजेक्शन को कैसे कंप्लीट किया? केयरफुली कंप्लीट किया. हमारा जो वर्ब है कि ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन वो कैसे कंप्लीट हुई है, इस वर्ड के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जा रही है कि बहुत ही केयरफुली से वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुई है. सो दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर इज आंसर बी. अदर्स आर रॉन्ग ऑप्शन. द करेक्ट आंसर इज आंसर बी. This policy is extremely. They will process the application tomorrow. अब एप्लीकेशन को वो क्या कर रहे हैं? प्रोसेस कर रहे हैं. B is the correct option because this is our verb. The bank was closed because it was a holiday. B is the correct option. This is a conjunction. Conjunctions कौन से words होते हैं जो कि sentences, phrases या group of words को join करते हैं. अब यहाँ पे हमारे दो sentences है. The bank was closed. Bank जो है वो closed था. क्यों? क्योंकि it was a holiday. Holiday थी. So जो ये because word है ये दो sentences को join कर रहा है. So that's why the correct option is option B. Preposition तो ये बिल्कुल नहीं है. Adverb जो कि verbs को define करते हैं वो वाले words होते हैं. This is not the adverb. And इंटरजेक्शन कौन से वर्ड्स होते हैं? जैसे कि वाव, हुरा. सो वो वाले वर्ड्स जो कि हमारे इमोशंस को डिफाइन करते हैं. एंड दिस इज नॉट अ इंटरजेक्शन. The loan application was completed with great dash, with great care. अब with लग गया. with is a preposition. most of the time जो preposition है वो nouns के आगे आती हैं. so definitely great is not a noun और यहाँ पे हमारा noun जो है वो missing है. so correct answer is answer C. करेक्ट आंसर इज आंसर सी. देयर फाइनेंशियल हेल्थ इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली. अब उनकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो चुकी है, पर जो हेल्थ, कौन सी हेल्थ इम्प्रूव हुई है? देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ हेल्थ. मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, पर कौन सी हेल्थ इंप्रूव हुई है? फाइनेंशियल हेल्थ. सो फाइनेंशियल इज द वर्ब विच इज प्रोवाइडिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर नाउन, दैट इज हेल्थ. हेल्थ जो हमारा नाउन है उसके बारे में फाइनेंशियल जो है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है. दैट्स व्हाई दिस इज अ एडजेक्टिव. एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो कि या तो नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं. सो दैट्स व्हाई द आंसर इज आंसर सी. The customer spoke politely to the teller. Answer is answer A.
पोलाइटली जो कि हमारा वर्ड है ये स्पोक के बारे में बता रहा है। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। स्पीक की सेकंड फॉर्म है स्पोक। और कस्टमर ने कैसे रिस्पॉन्स दिया, कस्टमर कैसे बोला, वेरी पोलाइटली। सो हमारे वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन जो वर्ड्स बताते हैं दैट आर कॉल्ड एडवर्ब। सो दैट्स व्हाई ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Select the part of speech for the underlined word. A few customers were waiting for assistance. Correct option is option B. Why? Because this is a adjective. Customers जो हैं वो help के लिए wait कर रहे थे। कितने customers? Few customers, थोड़े ही customers थे। Noun तो ये नहीं है क्योंकि noun are the naming words. Adjective is the correct option. Adjective में जो है numbers भी आ जाते हैं। So ये जो few है ये हमारे customer which is noun उसके बारे में additional information बता रहा है कि कितने customers जो हैं वो wait कर रहे थे। So that's why B is the correct option. C ये हमारा pronoun नहीं है और conjunction जो कि group of words joining words होते हैं और ये word किसी को join नहीं कर रहा। So that's why this is B is the correct option. Correct answer is answer A. Anonymity of food was spread over the tables. Anonymity of food, anonymity is a singular noun and we always use was with the singular noun. So instead of were, what should be the correct word? That is was. Anonymity of food was spread over the tables. Rest of the sentence is correct. Correct answer is answer B. The skipper of the boat guided the vessel. क्योंकि mate जो है वो यहाँ पे second form लगी हुई है तो ये जो सारा sentence है ये past में होना चाहिए। guide, guided, guided. So guided is the correct word और जो B है ये हमारा incorrect है। So that's why B is the correct answer. Spunky and full of spirit, the little girl is known for always doing things that others are afraid to do. Do is the correct answer. Does नहीं होता. Always we used to say afraid to do. So do आना था और D जो है ये हमारा correct answer है. The cell's nucleus is like the conductor of the huge opera who tells all the performers what to do. So क्योंकि हम यहाँ पे सिंगुलर की बात कर रहे हैं so tell के साथ हमें s लगाना था। tells is the correct word. Opera who tells all the performance. C is the correct answer. B is the correct answer. To avoid a calamity, the police are asking everyone. Police जो है ये हमारा plural subject है और इसके साथ हम are लगाएंगे. So that's why B is the correct answer. Correct answer is pillars. National Education Policy of India 2020 is built on the foundational dash of equity, access, quality and affordability. एजुकेशनल पॉलिसी 2022 जो है वो फाउंडेशनल डैश के ऊपर बेस है। सो करेक्ट आंसर इज पिलर्स। पिलर्स का मतलब होता है बेस। एम इज रॉन्ग बिकॉज दिस मीन्स गोल। कॉलम और पोस्ट ये भी गलत आंसर्स है। Correct answer is comprehensive.
They are asking that the policy is a dash framework of India's education system from elementary to higher education. So ये जो policy है ये एक dash framework है. Inclusive means included. Included it's not the correct answer. कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स डिटेल्ड, कि इस पॉलिसी में एक डिटेल्ड फ्रेमवर्क है, एक डिटेल्ड अप्रोच है फ्रॉम द एलिमेंट्री एजुकेशन टू द हायर एजुकेशन. सो करेक्ट आंसर इज कॉम्प्रिहेंसिव. Correct answer is outline. It also discusses the dash and scope of vocational training. Vocational training means जो छुट्टियां होती हैं उसमें जो स्टूडेंट्स ट्रेनिंग करते हैं उसको बोलते हैं vocational training. Figure means numbers. Numbers is not the correct answer. Profile means description देना. Shape जो है that is also wrong. So correct answer is outline. It also discusses the outline and the scope of vocational training. Correct answer is transform. Transform means change करना. The objective is to change India in a vibrant knowledge society. So India को totally knowledgeable society बनाना, एक तरह से एक transformation लेके आना, that is the goal, that is the objective of this policy. So transformation is the correct answer. Renovate means कोई चीज को दोबारा से नई जैसे बनाना. ट्रांसग्रेंस मीन्स बियॉन्ड लिमिट्स, एकदम लिमिट्स के भी बियॉन्ड चले जाना. सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. रेडो डिफरेंटली, इसका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी इंडिया को डिफरेंट बनाना नहीं है बल्कि एक चेंज लेके आना है. सो ट्रांसफॉर्मेशन इज द करेक्ट आंसर. Holistic means overall. Holistic is the correct answer. Constant observation is the correct answer. उन्होंने क्वेश्चन पूछा है what does keep a close eye mean according to the contest. Keep a close eye, यहाँ पे ये जो phrase है वो यूज हुई है. Teachers and counselors are hopeful this would pass soon, and till then they would have to be patient with the children and keep a close eye on their behavior. So जो teachers हैं और counselors हैं उनको अपने students को supervise करना है so that they could observe their behavior. ये जो passage है I think ये COVID के बाद का है जब schools जो है वो shut down हो गए थे, and in this passage they are saying about कि schools बहुत time बाद जो है वो open हुआ है. So students में कुछ behavioral changes आए हैं. So that's why teachers को क्या रखनी चाहिए? Constant observation, उनको supervise करना है. Correct answer is number 4, budge in classrooms. They are asking what are the teachers missing after the schools reopened. जब schools reopen हुए, दोबारा खुले हैं, तो teachers ने क्या मिस किया? फर्स्ट लाइन में ही उन्होंने ये आंसर दिया है, टीचर्स आर मिसिंग द familiar budge in the classrooms and have found a section of students to be unusually quiet. So जो students है वो usually quiet हैं जबकि पहले ऐसे नहीं होते थे और एक क्लास में चहल पहल होती थी, लेकिन जिसको अब टीचर्स मिस कर रहे हैं वो चीजें जो है वो अब एब्सेंस है. सो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर. Which of the following describes the most appropriate meaning of withdrawn according to the context? Withdrawn का मतलब बताना है. This is the word. Some students have withdrawn their social skills having been impacted by the long closure of schools. So कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपनी सोशल स्किल्स को विड्रॉ कर लिया. विड्रॉ कर लिया मीन्स कि अब वो किसी से ज्यादा बात नहीं करते, अब वो ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते अपने पीयर से, या फिर वो कम्युनिकेट नहीं करते. तो इनका डायरेक्ट आंसर जो होता है दैट इज लॉस्ट इन देमसेल्व्स. दिस इज द करेक्ट आंसर.
According to psychiatrists, which type of problems might children have developed? The correct answer is behavioral problems. लास्ट पैराग्राफ में ही उन्होंने जो प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस की है और साइकेट्रिस्ट का जो ओपिनियन है वो भी बताया है. They are saying that the children might have developed behavioral problems. चिल्ड्रन को बहुत सारी behavioral problems जो है वो हो गई हैं, जैसे कि screen addiction या restlessness, and they might have become impulsive and are not attentive to the lesson. और वो lessons को अच्छे से attend नहीं कर रहे due to various behavioral problems. So third is the correct answer. How long has it been since the schools reopened? ये क्वेश्चन काफी बच्चों का रॉन्ग जाता है क्योंकि इसका करेक्ट आंसर है 3 days. सो यही उन्होंने पूछा है कि स्कूल रीओपन होने को कितना टाइम हो चुका है. हाउ लॉन्ग हैज इट बीन? सो करेक्ट आंसर इज 3 days. Correct answer is answer 2. This statement 2 is incorrect. One should keep his promise. We are talking about a singular person, one. So here instead of his, we need to use one. One should keep one's promise if one wants respect from both friends and enemies. So this his is incorrect here. Correct answer is number 1 statement. You, he and she. We are talking about 3 persons here. Have done her best. Her best is incorrect. Their best. We are talking about 3 persons. So for the plural, which pronoun we use? It is their. Again, statement second is incorrect. A leader is a group member which exerts profound influence. We are talking about a person, and with persons we don't use which. So what is the correct answer? We need to use who. So statement second is incorrect. Correct answer is answer 4. No error in this sentence. Kamal trusts Ajay more than me because he has been his friend since childhood. This he is referring to the Kamal, and his friend, again this is used for Kamal. So no error in this sentence. Now in this question, correct answer is statement 2. This is incorrect. It will be us who will. Now us is used as a subjective case. जब भी यहाँ पे कोई subjective case लगाना होता है तो हम we का यूज करते हैं और we का objective case us है, पर क्योंकि इन्होंने subjective case ही us लगा दिया, so this is incorrect. Correct answer is again statement 3. Let's read the sentence. She lent me some money on the condition that I should return the same within a month. Now return the same, we are talking about this money. So money के लिए हम कौन सा pronoun use करेंगे? It is it, not the same. This is awkward and old, and the correct answer is I should return it within a month. Every of the 5 children. Statement 1 is incorrect here. Correct answer is each of the 5 children. Every of the 5 ये कोई since नहीं बनता है, या तो each of the 5 children आएगा या फिर every space 1 of the 5 children, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, but most appropriate option जो है वो है each of the 5 children. Now in this sentence, she used finish their
homework. They're talking about their homework means there are many persons. So she तो यहाँ पे definitely नहीं आएगा, या तो she को replace करके हम they कर देंगे, या फिर इस their को replace करके हम her भी कर सकते हैं. She should finish her homework before the class starts. दोनों में से कोई भी अगर she को they करते हैं या फिर their को her करते हैं, दोनों ही sentences जो हैं वो correct हैं. The teacher told us to submit his project by Friday. अब यहाँ पे us लगा हुआ है, मीन्स टीचर जो है वो बहुत सारे बच्चों को बोल रही है कि अपना प्रोजेक्ट जो है वो सबमिट करवाओ, और यहाँ पे इन्होंने his लगा दिया. सो प्रोनाउन यहाँ पे मैच नहीं हो रहे. us का ऑब्जेक्टिव केस हम r लगाएंगे, our. सो द टीचर टोल्ड us to submit our project by Friday. This is the correct sentence. Correct answer is option B. Last year I went to India. Last year means we are talking about past. जब past की बात होती है तो हम जो है वो second form use करते हैं, and went is the second form of go. Go, went, gone. So correct answer जो है वो है B. A is not the correct answer क्योंकि यहाँ पे go लगा हुआ है और verb जो है वो गलत है. C is also not the correct answer क्योंकि इन्होंने यहाँ पे present continue tense लगा दिया, और D में लगा हुआ है फ्यूचर टेंस, जबकि लास्ट ईयर वर्ड ये डोनेट करता है कि ये जो टेंस यहाँ पे लगना चाहिए वो पास्ट का लगना चाहिए. सो दैट्स व्हाई बी इज द करेक्ट ऑप्शन. Correct option is option D. I usually get the bus to work. Now in this option, usually word हमें ये define करेगा कि हम कौन सा tense लगाएंगे, क्योंकि most of the time जो usually है वो present, simple present में आता है. So simple present का क्या rule है, आपको s और es लगाना है. किसके साथ? सिंगुलर के साथ, और I के साथ सिंपल वर्ब लगती है, कोई भी s और es नहीं लगता. So I usually get the bus to work. I am usually getting. This is a continuous tense. This is a wrong structure. Then I usually gets. I के साथ s नहीं लगता, अभी जैसे मैंने बताया. So again this is incorrect option. Then I usually getting. यहाँ पे getting जो है वो gerund form लगी हुई है, पर helping verb हमारी missing है, और वैसे भी continuous tense नहीं आना. So other options are incorrect. Correct is option D. Correct option is option A. Next week I am going to the cinema. Next week means हम future की बात कर रहे हैं. So या तो आप simple future tense लगा सकते हो, या फिर going to जो है वो भी future actions को refer करने के लिए हम use करते हैं. So A is the correct option. Correct option is option C. He works. Which verb is not in the past form? अब यहाँ पे ये बताना है कि past form कौन सी verb नहीं है. He walked, walked, walk, walked, walked. So this is the past form. Go, went, gone again is the past form. He works. He के साथ s लगा हुआ है, सिंगुलर के साथ s और es लगता है, और verb हमारी work, worked, worked फर्स्ट फॉर्म ही लगी हुई है. So again correct. He bought. Buy, bought, bought. So this is also in the past tense. But जो C है वो correct option है because ये past tense नहीं है. Which verb is not in the present tense? अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी verb present tense में नहीं है. So first option ही option A, listen, listened, listened. Listened is the correct option because she talks, talk, talked, talked. Talk is the first form. She waits, wait, waited, waited. Again wait is the first form, and she watches, watch, watched, watched. क्योंकि यहाँ पे she सिंगुलर है तो हमने es लगाया है. सो ये जो तीनों ही ऑप्शंस है ये हमारी प्रेजेंट में है, बट द फर्स्ट वन इज इन द पास्ट. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन.
Which verb is not in the future tense? Future tense में will, shall ये लगता है with the first form. ऑप्शन डी इज करेक्ट क्योंकि ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस लगा हुआ है. बट ऑप्शन ए में विल लग गया, ऑप्शन बी भी विल विद द फर्स्ट फॉर्म, एंड ऑप्शन सी जो है दैट इज ऑल्सो विद विल एंड फर्स्ट फॉर्म. अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड. कम, केम, कम. गो, वेंट, गॉन. इन तीनों में ही फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, बट वी आर यूजिंग विल ऑल्सो, सो ये तीनों ही फ्यूचर के टेंस है. डी इज द करेक्ट ऑप्शन. What tense is the verb in this sentence? I got home from work at 6:30 p.m. Get, got, gotten. Got is the second form. Second form हम past में use करते हैं. So this is the past structure. B is the correct option. What tense is the verb in this sentence? The children are playing outside. Now is MR जो है वो past के लिए नहीं लगता, ये present के लिए लगता है. So this is the present continuous tense क्योंकि verb के साथ ing भी लगा हुआ है. So children जो है वो अभी बाहर खेल रहे हैं. So that's why this is the present tense. और present वर्ब का भी कौन सा tense है? Present continuous tense. Future and past ये दोनों ही options जो हैं वो गलत है. I will take you in the car. I will. Will जो है वो हमारा फ्यूचर को डिफाइन करता है. will के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है. सो टेक, टुक, टेकन. टेक जो है वो हमारी फर्स्ट फॉर्म है और करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. They go to college on Mondays. So go जो है this is the first form. बहुत सारे sentences में go, went, gone ही अभी यूज हुआ है. So definitely आपको पता होगा कि go is the first form. That's why this is the present tense. Correct option is option 1. So is right answer here. I was ill dash I didn't go to work. I was ill. मैं बीमार थी. अब मैं बीमार थी पर उसका रिजल्ट क्या निकला? I didn't go to work. तो मैं अपने वर्क में नहीं जा पाई. So जो so है वो किसी चीज का रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस बताने के लिए हम इसको यूज करते हैं. I was ill. अब मैं बीमार तो हूं लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला? So यहाँ पे कौन सी कंजंक्शन लगेगी? That is so. बिकॉज इज नॉट द करेक्ट आंसर. बिकॉज को हम रीजन के लिए डिफाइन करते हैं कि आई वॉज इल. अब मैं बीमार तो हो गई. बिकॉज अगर हम लगाते तो हम यहाँ पे रीजन बता दें कि मैं बीमार क्यों हुई. सो दैट्स वाई बिकॉज इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन. एज जो है वो भी बिकॉज की तरह ही हम यूज करते हैं रीजन बताने के लिए, इसलिए थर्ड भी हमारा गलत चॉइस होगी. करेक्ट आंसर इज आंसर 1. One is the correct answer here. The sentence is you should get your license renewed at once. आपको अपना जो लाइसेंस है वो रीन्यू करवा लेना चाहिए. डैश पे अ फाइन. अदरवाइज आपको फाइन पे करना पड़ेगा. सो यहाँ पे यू हैव द 2 ऑप्शंस. या तो आप लाइसेंस को रीन्यू करवा लो या फिर फाइन पे कर लो. ऑप्शंस के लिए हम और वर्ड को यूज करते हैं. सो दैट्स वाई करेक्ट आंसर इज आंसर 1. Correct answer is option 2. Dash there is no demand for this type of book. अभी यहाँ पे ऐसी बुक की कोई डिमांड नहीं है. आई कांट प्लेस एन ऑर्डर. सो इसलिए मैं जो है वो ऑर्डर नहीं प्लेस कर सकती. नाउ एज क्योंकि मैं रीज़न बता रही हूँ. मे बी कि मेरा बुक्स का जो है वो बिजनेस है, तो अगर मुझे ऑर्डर मिलेगा तभी मैं दूसरी साइड से बुक्स को जो है वो मंगवाऊंगी. सो क्योंकि अभी मेरे पास कोई डिमांड नहीं है तो मैंने ऑर्डर भी प्लेस नहीं किया. यहाँ पे हम रीज़न बता रहे हैं और अभी मैंने आपको बताया कि रीज़न बताने के लिए या तो बिकॉज का यूज़ होता है या एज का यूज़ होता है. एज इज करेक्ट option here. As there is no demand for this type of book, I can't place an order.
माई ग्रैंड फादर हैज़ नेवर फ्लोन इन एन एयरप्लेन। मेरे जो ग्रैंड फादर है वो कभी भी जो है वो एयरप्लेन में नहीं गए। डैश डज ही वॉन्ट टू फ्लाई इन वन। और वो कभी गए नहीं हैं और वो कभी जाना भी नहीं चाहते। सो नेगेटिव सेंस में अगर हम यहाँ पे ऑप्शन चूज करेंगे तो वो नीदर नहीं आएगा, नॉर जो है वो हमारी नेगेटिव चॉइसेस के लिए आता है। सो हमारे फादर ना तो कभी गए हैं और ना ही वो कभी जाना चाहते हैं। करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन। I am very tired dash I have been working all the day। एक सेंटेंस हमें बोल रहा है कि अभी मैं बहुत टायर्ड हूँ, दूसरा सेंटेंस हमें ये बोल रहा है क्योंकि मैंने सारा दिन काम किया। सो जो फर्स्ट सेंटेंस है उसका रीजन जो है वो सेकंड सेंटेंस दे रहा है। सो बिकॉज इज द राइट ऑप्शन हियर। I am very tired because I have been working all the day। because जो है वो रीजन के लिए डिफाइन होता है, so जो है वो कॉज के लिए डिफाइन होता है, एंड देयरफॉर इसका तो डिफरेंट ही यूसेज है। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज बिकॉज। Then she not only gave us a fine dinner dash drove us back home। Not only but also, ये जो है वो साइमल्टेनियसली इकट्ठे ही लगते हैं कि मुझे ये काम सिर्फ अच्छा नहीं लगता बट ऑल्सो ये वाला भी अच्छा लगता है। सो दोनों ही ऑप्शंस के लिए हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करते हैं। सो इस सेंटेंस में दे आर सेइंग दैट शी नॉट ओनली गेव अस अ फाइन डिनर, उसने सिर्फ हमें फाइन डिनर ही नहीं दिया, बहुत अच्छा खाना ही नहीं दिया, बट ऑल्सो ड्रॉव अस बैक होम, लेकिन हमें घर पे छोड़ के भी वो वापस आई। सो उसने दोनों ही काम किए हैं और इसका स्ट्रक्चर क्या जाएगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो। कोल्ड डैश इट वॉज वी वेंट आउट। हालांकि बाहर बहुत ठंड थी लेकिन फिर भी हम बाहर चले गए। सो थो जो है वो कॉन्ट्रैक्शन के लिए लगता है। एक सेंटेंस जो है वो कुछ बोल रहा है लेकिन दूसरा सेंटेंस उसके ऑपोजिट ही बोल रहा है। दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए हम थो क्या यूज करते हैं, जैसे कि कोल्ड थो इट वॉज, हालांकि बाहर बहुत ठंड थी। वी वेंट आउट, अब बाहर इतनी ठंड होने के बावजूद भी आप बाहर चले गए। सो दोनों ही सेंटेंसेस जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी कर रहे हैं। थो इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। आई एम नॉट एंग्री, मैं इतने गुस्से में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर मुझे कोई लिटिल सरप्राइज मिल जाता है, छोटा सा कोई भी सरप्राइज मिल जाता है, तब भी मैं इतने गुस्से में नहीं हूँ। सो कौन सा ऐसा वर्ड है जो इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल एनीथिंग, एवरीथिंग, इसके साथ कौन सी कंजक्शन जाती है? वो जाती है हमारी इफ। सो ये वाले वर्ड्स के साथ इफ ही लगता है। सो करेक्ट आंसर इफ हियर। द काजीरंगा नेशनल पार्क इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो वर्ल्ड की हेरिटेज साइट है। डैश होल्ड्स 2/3 ऑफ वन ऑनर्ड राइनोसोरस इन द वर्ल्ड। और ये जो इस पार्क में क्या है, 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स राइनोसोरस है। अब ये जो नेक्स्ट सेंटेंस है ये हमारे फर्स्ट सेंटेंस के बारे में ही एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। सो एंड तो इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि एंड जो है वो दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस या क्लोजेस को आपस में जोड़ता है, लेकिन ये सेकंड सेंटेंस तो फर्स्ट वाले पे डिपेंड है। सो एंड तो हम नहीं लगा सकते। ईदर इज ऑल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि ईदर जो है वो चॉइसेस के लिए है, यहाँ पे कोई चॉइस की बात नहीं हो रही। सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। दैट जो है वो हमारे फर्स्ट सेंटेंस के बारे में एक्सप्लेनेशन जो है वो प्रोवाइड करवाने के लिए यूज होता है, कि फर्स्ट जो भी लिखा हुआ है उसके बारे में अगर हम और एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो हम इस वर्ड का यूज करते हैं। सो दैट्स व्हाई दैट इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। August 31st is a national holiday
डैश एवरीबडी डांसेस इन द स्ट्रीट्स। कई बार स्टूडेंट्स इसमें वेयर ऑप्शन का यूज करते हैं, वेयर एवरीबडी डांसेस इन द स्ट्रीट्स, लेकिन जो व्हेन है वो मोस्टली टाइम के साथ लगता है और जो वेयर है वो हमारा प्लेस के साथ लगता है, और यहाँ पे हम प्लेस की बात नहीं कर रहे। सो करेक्ट ऑप्शन इज व्हेन हियर। स्ट्रेंज डैश इट मे साउंड, हालांकि ये सुनना स्ट्रेंज हो सकता है। आई डोंट लाइक वॉचिंग क्रिकेट, लेकिन फिर भी मैं क्रिकेट नहीं देखता। सो मैं क्रिकेट नहीं लाइक करता, ये एक स्ट्रेंज थिंग जो है वो सुनने के लिए हो सकती है। सो यहाँ पे हम रीजन दे रहे हैं कि ये सुनने में स्ट्रेंज हो सकता है। क्या सुनने में स्ट्रेंज हो सकता है? कि मुझे क्रिकेट देखना अच्छा नहीं लगता। सो रीजन के लिए या तो हम बिकॉज का यूज करेंगे या एज का। सो एज इज द करेक्ट ऑप्शन है। We will get there dash you do as soon as। आप जितनी जल्दी वहां पे पहुंचोगे हम भी उतनी ही जल्दी वहां पे पहुंच जाएंगे। सो यहाँ पे we will get there soon ये एक सेंटेंस है। you also get there soon कि आप भी जल्दी पहुंचो और हम भी जल्दी पहुंच जाएंगे। सो उन दोनों सेंटेंसेस को हम कंजंक्शन कौन सी यूज कर सकते हैं? as soon as के साथ सेंटेंस क्या बनेगा? we will get there as soon as you do। Correct answer is option 4. Do something exactly right. Hit the nail on head. This is an idiom which means to do something that is very much correct or accurate. So hit the nail on head means do something exactly right. ट्राइब्समैन जो है वो ध्यान से आए, क्यों आए? टू कलेक्ट द आइटम्स, आइटम्स कलेक्ट करने के लिए जो कि ऑफिशियल्स अपने पीछे छोड़ गए थे। सो केम फॉरवर्ड, दिस इज द करेक्ट phrase. This approach commonly used to describe approaching cautiously or stepping up for a task. ध्यान से जब कोई किसी की तरफ जाता है तब हम ये phrase use करते हैं, that is came forward. Came after जो है this is not grammatically correct क्योंकि वो उनके पीछे नहीं गए थे बल्कि ध्यान से आगे बढ़े थे ताकि वो left over items को collect कर सके। afar indicates distance but not through the context of approaching. So afar जो है वो हम distance measure करने के लिए लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर came afar जो है वो बिल्कुल ही गलत है। एंड सेम came ahead, ahead का मतलब ही होता है आगे जाना, सो वो came के साथ जो है वो नहीं आता। करेक्ट इज फॉरवर्ड। Ron said to me, he said his lunch at 2 p.m. yesterday. Now इस सेंटेंस को हमने इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। सो इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए सब्जेक्ट हमारा वही रहेगा। सो रोन का रोन होगा, said to जो है वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा told me. सो told me, रोहन told me। यहाँ पे हम कॉमर्स जो है वो हटा देंगे और यहाँ पे हम वर्ड यूज करेंगे दैट। रोहन सेड टू मी दैट he had his lunch. Now this had word indicates that this is the past tense और past tense को हम past perfect में change करते हैं। So past को past perfect में change करने के लिए हम जो ये had है ये 2 बार यूज करेंगे क्योंकि थर्ड फॉर्म जो है have की वो भी had है और past में हमारा had भी लगता है। So this is the correct option. Now you need to fill up the blanks. Correct option is specimens or extinction. Let's see how. The blue whale is the largest animal that ever lived.
ब्लू व्हेल एक ऐसा लार्जेस्ट एनिमल है जो हमेशा से ही रहा है. द लार्जेस्ट डैश ग्रो टू द लेंथ ऑफ अ बास्केटबॉल कोर्ट. नाउ यहाँ पे हम व्हेल की ही बात कर रहे हैं. सो यहाँ पे जो हमने ऑप्शन चूज करनी है वो ऐसी होनी चाहिए जो कि ब्लू व्हेल को ही डिफाइन करे. मॉडल इज नॉट द करेक्ट आंसर. सैंपल भी करेक्ट आंसर नहीं है क्योंकि सैंपल उस चीज के लिए यूज होता है जब हम बहुत सारे फिगर में से एक छोटा सा पार्ट उठाते हैं, पर यहाँ पर हम पूरी की पूरी स्पीशीज की ही बात कर रहे हैं. सो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. पैटर्न जो है वो भी बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है. एंड द करेक्ट वन है स्पेसिमन. स्पेसिमन मीन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ एनिमल्स. सो बहुत सारे एनिमल्स को जब डिस्क्राइब करना होता है वी कैन यूज द वर्ड specimens. This is correct here. A blue whale's heart is as big as a compact car. Its tail flukes are as wide as a soccer goal. और उन्होंने यहाँ पे टेल की डिस्क्रिप्शन दी है कि वो कितनी होती है जैसे कि एक सॉकर गोल होता है. These animals were hunted nearly to their dash. अब ये जो एनिमल्स है ये हंट करने की वजह से कोई ना कोई इसका रिजल्ट निकला. सो अगर किसी एनिमल्स की हंटिंग बहुत ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली वो एक्सटिंक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. रिमूवल भी हम वर्ड यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उसका मतलब होता है किसी जगह को हटाना, और यहाँ पे हम किसी हटाने की बात नहीं करें बल्कि इस एनिमल की जो प्रजाति है वो एक्सटिंक्ट होने के कगार पर आ गई है, खत्म होने वाली है. सो एक्सटिंक्शन इज द करेक्ट वर्ड. She will already return home when her parents get back from their offices. Correct option is she will already return home. अब यहाँ पे जो सेंटेंस है will already return, ये यहाँ पे बिल्कुल ही गलत जो है वो टेंस यूज किया गया है. हमें यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करना था. फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल क्या है कि will और शेल के साथ हम हैव लगाएंगे एंड हमारी थर्ड फॉर्म लगेगी. सो यहाँ पे विल और थर्ड फॉर्म लगी हुई है लेकिन हैव मिसिंग है. सो दिस इज इनकरेक्ट. और फ्यूचर परफेक्ट टेंस कब होता है जब हम दो फ्यूचर के एक्शंस को एक ही सेंटेंस में डिफाइन करते हैं. और फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसके साथ लगता है, वो वाले एक्शन के साथ जो कि पहले कंप्लीट होगा. सो यहाँ पे दो एक्शन है हमारे पास. दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2. इस एक्शन के साथ हम फ्यूचर टेंस लगाएंगे. एंड व्हाट इज द रूल, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म. सो दिस इज द रूल ऑफ द परफेक्ट टेंस. शी विल हैव रिटर्न्ड होम. वो घर वापस आ जाएगी बिफोर हर पेरेंट्स गेट बैक. कब घर वापस आएगी, उनके पेरेंट्स आने से पहले ही. सो पेरेंट्स घर आने से पहले ही वो घर पे वापस आ जाएगी. हम दो फ्यूचर में दो एक्शंस की बात कर रहे हैं और जो फर्स्ट एक्शन है उसके साथ हम विल हैव रिटर्न मींस फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाएंगे और सेकंड एक्शन में हम लगाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस. चलिए इसके साथ ही हम सिंपल फ्यूचर टेंस भी समझ लेते हैं कि ये वो वाले टेंसेस है जो कि फ्यूचर में जो एक्शन होगा उसको रेफर करेंगे. बट यहाँ पे हम दो एक्शंस की बात नहीं करें. वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट वन एक्शन. व्हाट इज द रूल हियर, विल शेल प्लस वर्ब विद द फर्स्ट फॉर्म. Her parents will get back from their offices later. So उनके जो पेरेंट्स हैं वो अपने ऑफिस से वापस आ जाएंगे. We are talking about the future. So हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस. और जो ये एक्शंस का सीक्वेंस है ये मैंने आपको बता ही दिया है कि जो एक्शन पहले खत्म होगा उसके साथ हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करेंगे. Correct answer is discuss. Camouflage means to hide or conceal. Antonym of renegade means followers. Renegade क्या होता है, वो वाला पर्सन जो कि किसी को चीट करता है. So इसका जो ऑपोजिट है वो क्या आएगा, जो किसी को फॉलो करता है. So that's why follower is the correct option.
One must brush up on the entire course before the day of examination. Now examination day से पहले अपनी skills को, अपने entire course को brush up कर लेना चाहिए, means अच्छे से check out कर लेना चाहिए. So brush up यहाँ पे बिल्कुल ही correct verb लगा हुआ है, बिल्कुल ही correct phrase है, यहाँ पे किसी भी substitution की ज़रूरत नहीं है. Brush about, brushing on, brushing off ये सारे ही गलत हैं. This sentence is already correct. He pushed her on dash. Purpose is the right option क्योंकि उसने उसको किसी गोल के लिए, किसी ऑब्जेक्टिव के लिए पुश किया, मोटिवेट किया. फोकस, डेलिब्रेट, आंसर प्लस ये बिल्कुल ही डिफरेंट चले जाएंगे. करेक्ट ऑप्शन इज पर्पस. Correct option is approach. The easiest approach to get started is to use your imagination and maturity. Approach का मतलब होता है कोई method, कोई काम करने का way. So सबसे जो easy approach है imagination और maturity की, वो क्या है? जल्दी से जल्दी किसी काम को start करना. Approach is the correct option here. Correct answer is disadvantage. Correct answer is the effectiveness of humans. Correct answer is rational. Utility of social media is the correct answer, means this is the correct title for this passage. Media and voice of the voiceless. This is the central theme of the passage. Okay, before explaining the correct answer, let's understand this passage first. In digital environments, social media means interaction. In digital environments का मतलब होता है इंटरनेट या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिनको कि हम कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं. सो वो बोल रहे हैं कि डिजिटल एनवायरनमेंट्स में सोशल मीडिया का मतलब क्या है? इंटरेक्शन मीन्स कम्युनिकेशन. किस पे कम्युनिकेशन? बिटवीन टू इंडिविजुअल्स इन विच दे जनरेट, communicate and transfer thoughts and knowledge. So social media का मतलब है कि interaction करना individual के बीच में so that they can exchange, they can generate, they can communicate their knowledge. मतलब अपने thoughts दूसरे तक पहुंचाना. This means social media. Being social has become a fundamental need. और social होना ये आज की basic need हो गई है. Fundamental means basic, essential, जरूरी need हो गई है. Demonstrating means showcase, demonstrating the effectiveness of humans. और ये जो need है ये हमें क्या show करती है? ये show करती है humans की effectiveness. People who were unheard means ये उन people को बोला गया है जिनके पास ये पास्ट में अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि वो सोशल साइट्स के थ्रू एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सके. मीन्स वो वाली जनरेशन जो कि पास्ट में थी और उनके पास ये वाली टेक्नोलॉजी नहीं थी. सो उन पीपल को यहाँ पे अनहर्ड बोला गया है. हु वर अनहर्ड आर नाउ एबल टू एक्सेस इंफॉर्मेशन. क्योंकि उनके पास पहले अपॉर्चुनिटी नहीं थी लेकिन अब वो इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं. And have a voice because of the magnificent advancements in communication systems. और अब उनके पास ये voice है क्योंकि अब communication system में बहुत ही advancement हो गई है. The present generation has the privilege of witnessing some of the most incredible technological advancements in the history of mankind. So जो present generation है उनके पास ये privilege है, उनके पास ये, कई लोग इसका मतलब राइट समझते हैं बट दिस इज नॉट राइट. मीन्स वो लकी हैं. दे आर लकी इनफ
टू विटनेस कि वो देख रहे हैं, वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं? सम ऑफ द मोस्ट इनक्रेडिबल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, जैसे कि चैट जीपीटी या फिर और जो हमारे पास एआई टूल्स हैं। आज की जो जनरेशन है उनको क्या कर रही है? विटनेस कर रही है। सो वो जनरेशन बहुत ही लकी है, दे हैव द अपॉर्चुनिटी। सो दिस इज अबाउट द पैसेज। अब क्योंकि इस पैसेज का हमारा मीनिंग क्लियर है तो अब हम क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब अभी हमने देखा, इट मीन्स कि लकी होना, और लकी का मतलब है दैट यू हैव द एडवांटेज ऑफ एक्सपीरियंसिंग द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। सो इसका ऑपोजिट क्या आ जाएगा? डिसएडवांटेज, कि आपके पास ये एडवांटेज नहीं। सो प्रिविलेज एंटोनिम इज disadvantage. What does the word social illustrate in the passage? अब social जो है वो दो साइड्स पे यूज किया है। एक तो उन्होंने बोला सोशल मीडिया और दूसरा बोला है बीइंग सोशल, और इस लाइन में मतलब भी लिखा हुआ है कि बीइंग सोशल, सोशल होना ये एक फंडामेंटल नीड है, और ये हमें क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रही है? दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ह्यूमंस। सब्जेक्टिविटी जो है दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर, क्योंकि सब्जेक्टिविटी मीन्स पार्शियलिटी हो जाना, एक एक इंडिविजुअल की बात करना, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। देन ग्रोथ की भी बात नहीं है, और लैक ऑफ ह्यूमंस तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है। सो अगर आपको ये पैसेज समझ नहीं भी आता देन भी इफेक्टिवनेस जो है, बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हो, देन भी आपके पास सेकंड ऑप्शन ही बचती है। ओके, नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द टोन ऑफ द पैसेज। आपके पास ऑप्शंस थे रैशनल, असर्टिव, satirical, scientific. Now before analyzing the correct answer, हम इनके पहले मीनिंग जो है वो क्लियर करते हैं। So rational का मतलब होता है लॉजिकल या फिर ऑब्जेक्टिव या फिर कोई ऐसी चीज जो कि फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है। सो लॉजिकल होना या रीजंस के साथ बात करना, फैक्ट्स के साथ बात करना। सेकेंड इज असर्टिव। असर्टिव मीन्स एक कॉन्फिडेंट टोन, अपना आइडिया प्रेजेंट करना कि हाँ दिस इज माय ओपिनियन और मैं इस ओपिनियन को लेके बहुत ही क्लियर हूँ। सो अपना आइडिया प्रेजेंट करना, इट कुड बी इन द पॉजिटिव फॉर्म, इट कुड बी इन द नेगेटिव फॉर्म ऑल्सो। देन सेट्रिकल, इट मीन्स ह्यूमरस या फिर क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज करना लेकिन एक ह्यूमरस वे में। लेकिन यहाँ इस पैराग्राफ में क्रिटिसिज्म का तो कोई बात हुई ही नहीं है, किसी चीज को क्रिटिसाइज नहीं किया गया। सो सैट्रिकल जो है वो तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है। देन साइंटिफिक, न्यूट्रल या फिर फैक्ट बेस्ड जो कंसेप्ट्स हैं उनके ऊपर फोकस करना, बट विद एविडेंस। जब हम साइंस की बात करते हैं देन वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट प्रूफ। सो एविडेंस के साथ जो बात, दैट इज द साइंटिफिक एनालिसिस। ओके, सो अब हम एनालाइज करते हैं इस पैसेज को। सो पैसेज में फैक्चुअल लैंग्वेज लिखी हुई है, जैसे कि इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स या फंडामेंटल नीड, और जो पैसेज है वो बहुत ही ऑब्जेक्टिव है, लॉजिकल है। दे आर टॉकिंग अबाउट द रोल एंड बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया, बट दिस इज नॉट क्रिटिकल, किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया गया। एंड थ्रू आउट द पैसेज दे आर टॉकिंग अबाउट द टेक्नोलॉजी, बट दे आर नॉट गिविंग एनी प्रूफ, दे आर नॉट गिविंग एनी डेटा। सो दिस इज नॉट द साइंटिफिक। सो इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है हमारी वो है रैशनल। दिस इज लॉजिकल, ऑब्जेक्टिव एंड बेस्ड ऑन द फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई अ सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। अब हमने पैसेज पूरा रीड कर लिया था तो हमें सिर्फ टाइटल ही ढूंढना है। सो टाइटल ढूंढने के लिए द बेस्ट ऑप्शन है कि आप सारे ऑप्शंस को पढ़ो और जो आपको एलिमिनेशन प्रोसेस है उससे आप अपना करेक्ट आंसर चूज करो। सो फर्स्ट ऑप्शन इज मीडिया एंड वॉइसेस। दे आर टॉकिंग अबाउट द वॉइसेस। वॉइसेस की बात हुई है कि पीपल को वॉइस मिल गई है जिनके पास पास्ट में अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लेकिन दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मीडिया। किसी सोशल पर्टिकुलर मीडिया की प्लेटफॉर्म की बात नहीं हुई। सो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। देन यूज ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का मीनिंग जरूर डिफाइन है बट उसके यूसेज वगैरह के बारे में भी कोई बात नहीं हुई। सो रॉन्ग आंसर। मीडिया एंड कम्युनिकेशन, अगेन मीडिया में इतना डिटेल इन्होंने फोकस नहीं किया। सो करेक्ट आंसर इज यूटिलिटी ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को कैसे यूटिलाइज करना है, दे आर टॉकिंग अबाउट दैट। Now next is identify the central theme of the passage. Now they are talking about voice of the voiceless. They are talking about this क्योंकि यहाँ पे voices की बात हुई है। अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें, फैक्ट्स एंड एडवांटेजेस, फैक्ट्स की बात नहीं हुई। मीडिया एंड नरेशन, नरेशन इन्होंने किसी भी चीज को नरेट नहीं किया, समराइज नहीं किया। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। एंड मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, मीडिया को भी इतना एम्फेसाइज नहीं किया। दे आर टॉकिंग अबाउट जर्नल, किसी स्पेसिफिक मीडिया की बात नहीं की। सो ये तीनों ही ऑप्शंस गलत हैं एंड द फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर।
The God is omniscient. Omniscient means that thing which knows everything. It could be a person or it could be energy. So omniscient means knowing everything. And we are using the article the before God, but we are not speaking about a particular or specific thing. We are talking about God in general. So that's why the is incorrect here. God is a proper noun and doesn't require article. The correct sentence should be God is omniscient. B is the correct answer. He has a keen eye for business and every year his firm makes a great profit. Now in these sentences they are using a great profit. This article is correct here because they are talking about profit, which is a countable noun, and a profit means they're talking about significant amount of profit. So that's why there is no error in the first statement. Let's talk out the second one. He has a keen eye for business and every year his firm makes a great profit. Now this is wrong because it should be before the adjective, that is great. So there is an error. In C part they are using makes great profit and they are not using any article. Even before key there should be an article, so C is also wrong and D also has the similar mistake. So correct answer is answer A. Now in this sentence there is an error and you need to find out that error. B is the correct answer. I is angry with myself. We always use am with I. We can't use is. So I am angry with myself for making so many mistakes. B is the correct answer. Radha told her friends that she will discuss the project with her mentor when she would meet him tomorrow. Now from these options we need to choose that option which expresses the sentence into the indirect form. So A is the correct answer. She would meet him tomorrow. Will जो है indirect speech में वो would में convert हो जाएगा. So that's why A is the correct answer. He said to me, please pass the salt. अब यहाँ पे please लग गया है तो they are requesting. He requested me to pass the salt. क्योंकि please का हमने requested लगा दिया तो यहाँ पे please की जरूरत नहीं है. B is the correct answer. The poor cat was brutally chased by the kids. Now this sentence need to change into the active voice. So सबसे पहले हम subject का object बनाएंगे और object का subject. So जो kids है वो सबसे आगे चला जाएगा. The kids से sentence start होगा. Then हम देखेंगे tense. Tense यहाँ पे past लगा हुआ है तो हम इसको simple past सिर्फ second form लगाएंगे and then हम जो rest of the object है वो लिख देंगे. So D is the correct option. The kids brutally chased the poor cat. They will send Madhu away to a boarding school. Now passive voice बनाना है. So Madhu से sentence start होगा. Madhu will be sent away to a boarding school by them. A is the correct answer. She was reluctant to say anything to the members of the board. Reluctant का मतलब होता है hesitate या फिर unwilling होना, मतलब किसी को कुछ ना कहना. लेकिन यहाँ पे उन्होंने हमसे opposite पूछा है, so उसका opposite आ जाएगा eager. Eager is the correct answer. Reluctant, eager. People with
Generous hearts can see the intrinsic value in something which looks worthless to others. Now they are asking about the opposite of intrinsic. Intrinsic का मतलब होता है belonging naturally या फिर essential. So जो जरूरी worthful values होती हैं उनको हम बोलते हैं intrinsic value. और इसका opposite आ जाएगा extraneous. Extraneous means irrelevant. So correct answer is option D. Then perceive का भी हमें एंटोनिम चाहिए, ऑपोजिट चाहिए. perceive means अवेयर हो जाना, किसी के रिगार्डिंग कोई व्यू पॉइंट देना, और इसका ऑपोजिट आ जाएगा neglect. So neglect is the B correct answer. By next year, they will have built their new tower. Now, in this statement, this tense is wrong. They will have. They are talking about future perfect tense, और future perfect का rule है कि हम will have, shall have के साथ third form लगाते हैं. So built. So this is wrong. Built की जगह पे built T आना था. Built their new tower. Second is the correct option. My brother will bake 2 dozen cookies for the bake sale. Now this is the statement which we need to convert into the passive voice. Passive voice के लिए सबसे पहले हम अपना object ढूंढ लेंगे so that we can convert our object into the subject. So my mother will bake 2 dozen cookies. 2 dozen cookies जो है ये हमारा object है कि अब मेरी mother जो है वो अभी 2 dozen cookies को bake करेगी. So इस object को सबसे पहले हम सब्जेक्ट बनाएंगे. सब ऑप्शंस सेम है. सो लेट्स मूव टू द टेंस. उसके बाद हम अपना टेंस चेंज करेंगे. फ्यूचर का टेंस है सो हम विल बी विद थर्ड फॉर्म लगाएंगे. पैसिव बनाने के लिए हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं. सो विल बी बेक्ड ये हमारा करेक्ट टेंस है. विल बी बेक्ड जो है वो सेकंड में लगा हुआ है. सो अदर ऑप्शंस जो है वो एलिमिनेट हो गई हैं. हमारे करेक्ट ऑप्शन है 2 dozen cookies will be baked by my mother for the bake sale. My mother is the subject जिसको कि हम object बना देंगे and rest of the phrases will be the same. So correct is second option. Our forefathers loved trees and forests so much that they dashed, defeated and worshipped them as abodes of Vriksha Devta and Van Devta. सो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि हमारे जो पुरख थे वो ट्रीज और फॉरेस्ट को बहुत ही प्यार करते थे, लव करते थे. सो मच इतना करते थे. दे के बाद हमें इन चारों में से जो ऑप्शन चूज करनी है वो कोई ऐसा वर्ड होना चाहिए जो कि नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट को और ज्यादा एम्फेसाइज करे. सो इवन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. बाकी ऑप्शंस को भी हम पहले देखेंगे. हार्टली का मतलब होता है डूइंग समथिंग विद ग्रेट एंथुजियाज्म. सो बहुत ही दिल के साथ कोई काम करना. हार्टली यहाँ पे हार्टली जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट फॉर्म नहीं दे रहा. सो नेक्स्ट वर्ड इज डाउनराइट. डाउनराइट मीन्स एब्सोल्युटली या कंप्लीटली. वो कंप्लीटली ही वर्शिप करते थे. ये भी इतनी करेक्ट सेंस नहीं दे रहा. चीफली मीन्स प्राइमरी या फिर मेनली. किसी चीज को फोकस करने के लिए भी हम चीफली यूज करते हैं. जैसे हम बोलते हैं कि प्राइमरी हमारा ये गोल है सो दैट इज द चीफली पॉइंट. लेकिन यहाँ पे हम एम्फेसाइज कर रहे हैं. जो इवन है ये वर्ड हमारा एम्फेसाइज के लिए यूज होता है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1. Neither of my sisters are interested to come on a vacation with me. Now neither of my sisters यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगेगी. यहाँ पे इन्होंने आर लगाया हुआ है. My sisters में से कोई भी नहीं आ रहा तो उसके साथ हम is लगाते हैं. आर जो है वो गलत है. So that's why third is the correct answer. कम्बरसम का हमें सिनोनिम बताना है. कम्बरसम मीन्स होता है डिफिकल्ट टू हैंडल,
manage or carry due to its size, weight or complexity. So कोई चीज बहुत ही बड़ी है और उसको मैनेज करना या उसको हैंडल करना बहुत ही डिफिकल्ट है. कमर्सम, अब इसके सिनोनिम्स भी देखते हैं. मींस बल्कि अगर कोई चीज है तब भी हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं. क्लम्सी के लिए, अनवाइडली और इनकन्वीनियंट के लिए. लेकिन इनके जो एंटोनिम्स हैं दैट इज मैनेजेबल, कॉम्पैक्ट और कन्वीनियंट. सो वो वाली चीजें जिनको इजीली मैनेज किया जा सकता है, दैट इज द ऑपोजिट ऑफ कम्बरसम. सो ऑब्वियसली यहाँ पे सेकंड जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है. कम्बरसम जिसका सिनोनिम है क्लम्सी. फटीग मीन्स होता है थक जाना. दिस इज नॉट द करेक्ट वर्ड. इजी और लाइट भी जो है वो इसके सिनोनिम्स नहीं है. सो सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन. Ritika was deprived of her father's property as she married a knave. अब रितिका ने जो है अपने फादर्स की प्रॉपर्टी में राइट खो दिया है. क्यों? क्योंकि उसने किसी नेव के साथ मैरिज कर ली है. अब नेव का क्या मतलब है? नेव का मतलब होता है डिसऑनेस्ट पर्सन, वो वाला पर्सन जो कि धोखेबाज हो. सो नेव का करेक्ट सिनोनिम है रॉग. रॉग इज द करेक्ट ऑप्शन. Actions done with malice have no good intention. Malice का मतलब होता है ऐसे थॉट्स जो कि नेगेटिव होते हैं, हार्टेड होते हैं, जो किसी के लिए अच्छे नहीं होते. सो अगर ऐसे थॉट्स के साथ कोई भी एक्शन जो है वो परफॉर्म किया जाए तो उसका जो रिजल्ट है वो भी अच्छा नहीं आएगा. नो गुड इंटेंशंस. सो उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा. सो मैलिस का मतलब होता है नेगेटिव थॉट्स. और अब हमें इसका अपोजिट ढूंढना है. Let's see, the first word is animosity. Animosity का मतलब होता है strong hostility और hatred. इसका भी नेगेटिव ही सेंस में मीनिंग है, किसी से हेट करनी. देन enmity का भी मतलब होता है किसी को अपोज करना, किसी को हॉस्टाइल करना, नफरत करनी. एंड rancor, it also means ill will, negative thoughts. So goodwill is the correct answer. Can you not knock so louder in the morning? Now in this sentence louder word गलत है. louder की जगह loudly आना था. Can you not knock so loudly in the morning? louder जो है वो adjective की comparative form है, लेकिन यहाँ पे हमें word चाहिए था loudly. So that's why second phrase में mistake है. Second is the correct answer. Ajay will have been writing his homework all day by the time his mom returns. अब यहाँ पे future perfect continue tense की बात हो रही है. ये हम तब tense यूज करते हैं जबकि future के दो actions को हमने रेफर करना हो और उसमें से एक जो action है वो present में हो. सो यहाँ पे इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है. उन्होंने दो एक्शंस की बात की है. अजय विल हैव बीन राइटिंग हिज होमवर्क ऑल द डे. अजय जो है तब तक काम करेगा जब तक कि उसकी मॉम वो है वापस नहीं आ जाती. सो दोनों ही एक्शन फ्यूचर के हैं. टेंसेस भी करेक्ट लगे हुए हैं. नो एरर इन दिस सेंटेंस. The child says, I do not want to go to school. Now, this sentence need to convert into the indirect speech. अब child ने ये बोला कि उसने स्कूल नहीं जाना है या वो नहीं जाना चाहता. So, child says जो है वो as it is ही आ जाएगा. यहाँ पे तीन options हैं हमारे पास child says के साथ. कॉमर्स को हटा के हम that लगा देंगे. अब I जो है वो फर्स्ट पर्सन के साथ चेंज हो जाएगा. child की बात कर रहे हैं, so they are talking about he. तो हम यहाँ पे ही लगा देंगे. थर्ड और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी. फर्स्ट और सेकंड हम एलिमिनेट कर देंगे. अब ही के साथ डज लगता है, ही के साथ डू नहीं लगता. सो डेफिनेटली थर्ड इज द रॉन्ग एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर. द चाइल्ड सेज दैट ही डज नॉट वांट टू गो टू स्कूल. अब क्योंकि चाइल्ड स्कूल नहीं जाना चाहता तो यहाँ पे हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे, प्रेजेंट को हम पास नहीं बनाएंगे.
अगर हम इसका टेंस चेंज करते हैं तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई वी विल नॉट चेंज द टेंस. The soldier showed fortitude and resilience while facing the opponents. Now, in this sentence, we need to find out the synonym of the word fortitude. Fortitude के synonym से पहले let's find out कि इन चारों का meaning क्या है. The child showed ingenuity by building a house using just paper and glue. So, child ने अपनी creativity show की है एक house बना के just पेपर और ग्लू को यूज करके. सो उसने क्या शो की है? क्रिएटिविटी. द सोल्जर्स शोड इंजेन्युइटी एंड रिसाइलेंस व्हाइल फेसिंग द ओपोनेंट्स. अगर हम फॉर्टिट्यूड को इंजेन्युइटी से रिप्लेस कर देते हैं तो हमारा कुछ सेंटेंस ऐसा बन जाएगा कि सोल्जर्स जब ओपोनेंट को फेस करते हैं तब वो क्रिएटिविटी शो करते हैं. डेफिनेटली दिस इज रॉन्ग. क्रिएटिविटी इज नॉट द राइट आंसर. लेट्स सी द नेक्स्ट वन इज ब्रेवरी. ब्रेवरी मीन्स करेज. The boy showed bravery when he helped the dog stuck in the river. So जब बॉय ने देखा कि एक डॉग जो है वो रिवर में स्टक कर गया है तो उसने क्या किया? अपनी ब्रेवरी शो की, उसने उसको बचाया, उसकी हेल्प की. सो ब्रेवरी, करेज. द सोल्जर्स शोड करेज. अब जब वो अपोनेंट्स को फेस कर रहे हैं तो वो करेज शो कर रहे हैं. ऑब्वियसली सोल्जर्स में बहुत करेज होता है, वो बहुत ब्रेव होते हैं. सो ब्रेवरी इज द करेक्ट आंसर. Atrocity. Atrocity means terrible and cruel acts. वो वाले acts जो कि बहुत अच्छे नहीं होते. The story talked about the atrocities of war that hurt many people. Atrocity is also not the correct answer. नेक्स्ट इज कॉन्शियसनेस का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल. कोई काम आप कॉन्शियसनेस के साथ करते हो तो इट मीन्स यू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन. शी शोड कॉन्शियसनेस बाय क्लीनिंग हर रूम केयरफुली एवरी डे. सो कॉन्शियसनेस का मतलब है रिस्पॉन्सिबल. द सोल्जर्स शोड कॉन्शियसनेस and resilience while facing the opponents. No, this is not the correct answer. So correct answer है हमारा bravery. Bravery is the right answer. The beggar woman said, "What will I do with so much money, my dear prince?" Now this sentence need to be converted into indirect speech. So indirect speech के लिए पहले हम देखते हैं कि इसके rules क्या है. Now सबसे पहले तो हम reporting verb को change करेंगे जो कि said, asked या replied होती है. लेकिन यहाँ पे हमारी क्योंकि second verb पहले लगी हुई है तो हम सेट को चेंज नहीं करेंगे, ये एज इट इज ही रह जाएगा. रिमूव द कोटेशन मार्क्स. उसके बाद हमने ये कोटेशन मार्क्स हटा के मोस्ट ऑफ द टाइम हम दैट यूज करते हैं, बट क्योंकि ये क्वेश्चन का सेंटेंस है तो हम व्हाट से ही सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन मार्क्स हट के व्हाट लग जाएगा. देन वी नीड टू चेंज द प्रोनाउन. अब यहाँ पे आई लगा हुआ है, आई हमारा बेगर जो है उस पे चेंज होएगा, फर्स्ट पर्सन में चेंज होता है. बेगर जो है वुमन, सो शी जो है वो आई की जगह पे चेंज होगा. आफ्टर दिस वी नीड टू कन्वर्ट द टेंसेस. अगर विल, शेल, इज, एम, आर, हैज और हैव ये वाले टेंसेस लगे हुए हैं तो इसकी हमने पास्ट फॉर्म लगानी होती है. सो विल का वुड हो जाएगा, शेल का शुड हो जाएगा, इज एम का वॉस और हैज और हैव का हैड हो जाएगा. सो यहाँ पे है विल, विल का हम वुड बना देंगे. एंड देन आफ्टर दिस माय डियर प्रिंस, ये एंड में लिखा हुआ है, इसको हम स्टार्टिंग में लेके जाएंगे. तो ये सेंटेंस कैसे बन जाएगा? द beggar woman asked the prince what she should do with so much money. This is the correct answer. बजरंग सेड आई वेंट टू चंडीगढ़ yesterday. अब बजरंग ने बोला कि कल मैं चंडीगढ़ गया था. सो बजरंग सेड दैट. अब आई का हम बजरंग के साथ प्रोनाउन को चेंज करेंगे, बजरंग का बन जाएगा ही. बजरंग सेड दैट ही. अब यहाँ पे पास्ट फॉर्म लगा हुआ है, पास्ट का सेंटेंस है, सिंपल पास्ट को हम किस में चेंज करते हैं? पास्ट परफेक्ट में. सो वेंट का बन जाएगा हैड गॉन, गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म जो है वो लग जाएगी.
to Chandigarh yesterday. Yesterday will change into the previous day या फिर the day before. इनमें से कोई भी लगा सकते हैं. So इन चारों ऑप्शन में से हमारी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1. Bajrang said that he had gone to Chandigarh the day before. लकी का हमें सिनोनिम ढूंढना है. आउटरेजियस का मतलब होता है वेरी शॉकिंग. इट वाज आउटरेजियस दैट दे कैंसल द कॉन्सर्ट एट द लास्ट मिनट. सो ये बहुत ही शॉकिंग है कि उन्होंने लास्ट मिनट पे कॉन्सर्ट को कैंसिल कर दिया. सो लकी का जो सिनोनिम है वो आउटरेजियस तो नहीं है. जेलस मीन्स कि किसी को देखकर जेलसी फील करना. He was jealous because his friend won the prize. Definitely lucky का synonym jealous भी नहीं है. Then auspicious, it means favorable. The start of the game was auspicious with the team scoring a goal अर्ली. सो जो गेम की स्टार्टिंग है वो बहुत ही अच्छी हुई है क्योंकि टीम ने क्या है बहुत ही जल्दी एक गोल कर लिया. सो उसकी जो स्टार्टिंग है वो बहुत ही अच्छी हुई है. तो वी कैन से कि जो टीम है वो लकी भी है. सो दिस इज द सिनोनिम फॉर लकी. ऑमिनस मीन्स बैड और अनप्लेजेंट, कोई चीज हैपन हो जाना. द स्काई लुक्ड ऑमिनस बिफोर द रेन स्टार्टेड. अब क्योंकि हमें स्काई जो है ऑमिनस दिख रहे हैं तो मे बी जो है वो स्टॉर्म आ जाए या बहुत ही जोर से बारिश हो. सो समथिंग ऐसी फीलिंग आना कि आगे कुछ अच्छा नहीं होने वाला, दैट इज ऑमिनस. तो इन चारों में से द करेक्ट ऑप्शन इज ऑस्पिशियस मीन्स फेवरेबल. Rohan said, commas, I will arrive late. Now, this is a very simple sentence. Rohan said that I का जो है वो he बन जाएगा क्योंकि रोहन is a boy. Will जो है हम would में change कर देंगे. I would arrive late. So यहाँ से हमारी ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट है. रोहन said that he would arrive late. The cashier admitted that he was make a mistake. अब कैशियर ने ये एडमिट कर लिया है कि उसने कोई मिस्टेक की है. सो इन दिस सेंटेंस ये जो लास्ट वाला पार्ट है इसमें से आपको पता करना है कि क्या कोई मिस्टेक है. यस, डेफिनेटली देयर इज अ मिस्टेक. पहले तो यहाँ पे क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो हमें चाहिए था पास्ट परफेक्ट टेंस. सो हैड के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी. तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? द कैशियर एडमिटेड दैट he had made a mistake. Second is the correct option. If I was the president of India, I would work to ensure communal harmony. Now, if I was, ये जो है ये कंडीशन का सेंटेंस है और कंडीशन के सेंटेंसेस में हम was नहीं लगाते. सो इसके जो फर्स्ट पार्ट में ही मिस्टेक है. यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था if I were the president of India. was की जगह were आना था. To be in the driving seat. This is the idiom. You need to find out the meaning. अब आप खुद ही सोचो कि आप कार में जा रहे हो और आप ड्राइविंग सीट को कंट्रोल कर रहे हो. सारी कार का ही कंट्रोल आपके ऊपर है. सो इसका मीनिंग क्या बनेगा? टू बी इन चार्ज और कंट्रोल ऑफ अ सिचुएशन. पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करना. फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर. In the future, people are not going to physical stores as much as they do now. Now they are talking about the future, but they are using the present tense. Present continue जो है, हालांकि ये future को define करने के लिए भी लगता है going to, पर are not ये बिल्कुल ही गलत है. So correct sentence क्या होना चाहिए था? Were not first is not the correct answer. Then are not सेकेंड भी गलत है. देन शुड भी हमारा गलत है. फोर्थ इज द करेक्ट आंसर. इन द फ्यूचर पीपल विल नॉट गो टू फिजिकल स्टोर्स एज मच एज दे डू नाउ.
Select the synonyms of rabble. Rabble का मतलब होता है a large group of people usually noisy or disordinary. Now कोई ऐसा ग्रुप जो कि बड़ा ही noisy है और वो इकट्ठे ही गैदर हुआ है. So let's see the options. Rubbish. Rubbish का मतलब है waste material. He threw the rubbish into the bin after cleaning the room. So this is not the correct answer क्योंकि ये इसका बिल्कुल भी synonym नहीं है. Then havoc. Havoc means great damage. The storm caused havoc, destroying houses and trees. So storm ने बहुत ही damage कर दिया, houses और trees को destroy कर दिया. But this is not the correct answer. Again, noise. Noise तो आपको पता ही होगा, शोर मचाना या loud जो है वो sound, उसको हम noise बोलते हैं. The noise from the construction site kept me awake all night. So जो construction site से noise आ रही थी उसने मुझे सारी रात जगा के रखा. So this is not the correct answer. Let's see the last one. Elite. Elite means a small group of people with high status or power. यहाँ पे हम किसी क्लब की बात कर सकते हैं कि क्लब के जो मेंबर्स हैं उनको हम एलाइट बोल सकते हैं. लेट्स सी द सेंटेंस. ओनली द एलाइट मेंबर्स ऑफ द क्लब कुड अटेंड द स्पेशल इवेंट. सो ये जो क्लब के मेंबर्स हैं उन्हीं के लिए ये इवेंट है. नाउ रेबल का हमें सिनोनिम्स जो है वो ढूंढना था, दैट इज एलाइट, क्योंकि रेबल का मतलब भी ग्रुप ऑफ पीपल होता है और एलाइट मीन्स ऑल्सो ग्रुप ऑफ पीपल. Ajit doesn't help me with my homework. This sentence needs to be converted into the passive voice. Passive voice का रूल क्या है कि हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे. So Ajit does not help me. Me is the object here. और जब me ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनता है so वो हमारा बन जाता है I. आई के बाद हम सेंटेंस का जो टेंस है वो चेंज करेंगे. सो डज नॉट हेल्प, ये हमारा प्रेजेंट टेंस लगा हुआ है. अब जब हमने इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे विद द प्रेजेंट टेंस इज एम आर. सो आई के साथ क्या लगता है, एम. आई एम नॉट, क्योंकि नेगेटिव टेंस है तो नॉट लगेगा. आई एम नॉट. हेल्प का बन जाएगा हेल्प्ड. आई एम नॉट हेल्प्ड. अब यहाँ पे सिर्फ सेकंड जो है वही हमारी ऑप्शन है, आई एम नॉट हेल्प्ड. बाकी सारी ही ऑप्शंस गलत हैं. सो हमें बाकी का सेंटेंस करने की जरूरत नहीं है. वी गॉट आवर आंसर. आई एम नॉट हेल्प्ड बाय अजीत विथ माय वर्क. Riya arrived at the train station lately. Now in this sentence lately जो है वो बिल्कुल ही wrong है. lately हम past form के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये वाला जो एक्शन है वो अभी अभी खत्म हुआ है. So या तो ये सेंटेंस ऐसे आ सकता था, Riya arrived at the train station recently. So lately जो है that is incorrect. इसमें error है, that's why third is the answer. सेपरेट द wheat फ्रॉम द चाफ. चाफ होता है वर्थलेस चीज, जो कनक के दाने का छिलका होता है उसको हम चाफ बोलते हैं. और जब उसमें से व्हीट जो सेपरेट करते हैं तो इट मीन्स कि कोई वर्थलेस चीज में से हम कोई वैल्यूएबल चीज जो है वो निकाल रहे हैं. सो करेक्ट आंसर इज टू सेपरेट द वैल्यूएबल फ्रॉम द वर्थलेस. By whom was Hindi taught to you? Now इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है. सेम पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि ये क्वेश्चन का सेंटेंस है सो हमारा क्वेश्चन जो बाय whom है वो चेंज होके who बन जाएगा. तीनों ही ऑप्शंस हमारे पास आ चुकी हैं. फर्स्ट ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दी है क्योंकि बाय whom का बाय whom ही यहाँ पे लिखा हुआ है, बट बाय whom का क्या बनेगा, who बनेगा. उसके बाद ये हमारा पास्ट टेंस का पैसिव फॉर्म लगा हुआ है. सो इसका एक्टिव फॉर्म क्या होगा, taught. who taught. अब you आएगा, who taught you हिंदी. हिंदी इज द ऑब्जेक्ट, सो ये बाद में जाएगा. सो करेक्ट आंसर इज who taught you हिंदी. Nina will visit Greece in May. Need to convert into the passive voice. So
ग्रीस से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे ग्रीस ऑब्जेक्ट है, तो हम पैसिव में क्या करेंगे, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे. सो ग्रीस विल विजिट, अब इस फर्स्ट फॉर्म की थर्ड फॉर्म लग जाएगी. सो ग्रीस विल बी विजिटेड बाय नीना इन मई. दिस इज द करेक्ट आंसर. ग्रीस विल बी विजिटेड बाय नीना इन मई. In his character, I could hardly find something worthy of admiration. अब यहाँ पे I could hardly find something बड़ा ही awkward सा जो है वो लग रहा है. यहाँ पे होना चाहिए था I could hardly find anything. So correct answer is this first phrase. This is incorrect. यहाँ पे error है. यहाँ पे क्या होना चाहिए था, I could hardly find anything. The mass protests sometimes change the decisions of the rulers in democratic countries. अब इस सेंटेंस को हमने फ्यूचर टेंस में बदलना है. सो अगर हमें फ्यूचर टेंसेस के रूल पता है तो हम बाकी सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे. अब हैड बीन पास्ट में यूज होता है, डेफिनेटली फर्स्ट इज द इनकरेक्ट. आर चेंजिंग, ये भी हमारा पास्ट के लिए है, सॉरी आर चेंजिंग ये हमारा प्रेजेंट के लिए है, ये भी इनकरेक्ट हो गया. हैज़ जो है ये भी हमारा प्रेजेंट के लिए होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सो ये भी इनकरेक्ट है. करेक्ट इज द सेकेंड ऑप्शन क्योंकि यहाँ पे कुड लगा हुआ है. कुड जो है वो फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज के लिए लगता है. सो द मास प्रोटेस्ट समटाइम्स कुड चेंज द डिसीजंस ऑफ द रूलर्स इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज. थ्रो द जैकेट, दिस सेंटेंस नीड टू बी चेंज टू द पैसिव फॉर्म. अब पैसिव फॉर्म में चेंज करने के लिए हम ऐसे सेंटेंसेस के लिए लेट का यूज करते हैं. सो फर्स्ट और थर्ड ये दो ऑप्शंस बची है हमारे पास. लेट के बाद आएगा जो इसका ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे. सो लेट द जैकेट. अस जो है यहाँ पे इररिलेवेंट है, सो फर्स्ट ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गई है. हमारा आंसर है लेट द जैकेट बी थ्रोन. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. The principal said to the students, listen to the announcement carefully. Now this sentence need to be changed into the indirect speech. So principal ने students से कुछ कहा, this is the direct speech. Indirect में change करने के लिए हम पहले देखेंगे कि principal ने students को क्या दिया. यहाँ पे हमने order देखा है कि प्रिंसिपल स्टूडेंट्स को ऑर्डर दे रहा है, सो हम यूज करेंगे द प्रिंसिपल ऑर्डर द स्टूडेंट. ऑर्डर जो है वो फर्स्ट और थर्ड में लगा हुआ है, सो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन बची है हमारे पास. द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द स्टूडेंट, या तो दैट आएगा या टू आएगा. दैट हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट से सेंटेंस नहीं स्टार्ट हो रहा. सो करेक्ट आंसर इज आंसर 3. द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू लिसन टू द अनाउंसमेंट केयरफुली. That is incorrect. Okay, next is aspirations give us the clarity of our goal. Now this sentence need to be changed into the passive form. So जो यहाँ का ऑब्जेक्ट है द क्लैरिटी ऑफ आवर गोल्स, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे. द क्लैरिटी ऑफ आवर गोल से सेंटेंस स्टार्ट होगा. सारे ही सेंटेंस द क्लैरिटी ऑफ आवर गोल से स्टार्ट हो रहे हैं. उसके बाद हम टेंस लिखेंगे. अब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, सो प्रेजेंट में आपको इज एम आर लगाना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि द क्लैरिटी ऑफ आवर गोल्स इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब जाएगी. सो द क्लैरिटी ऑफ आवर गोल्स के साथ इज द करेक्ट. फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि इसके साथ इज लगा हुआ है. द क्लैरिटी ऑफ आवर गोल्स इज गिवन बाय एस्पिरेशंस. Hope you enjoy the video and this video is valuable to you. And if yes, अगर आपके पास कोई suggestion है कि आपको कैसे grammar के quizzes चाहिए for the future, then please write it on the comment section.